Satish, should we start now? Satish, you there? Might be he's on a call. Hey, hi Madhu. Hi, Madhu. Okay, I think Satish is not here, and someone else in place of him is there to work here. Okay, okay. Okay, so Madhu, can you hear us? Yeah, hi. Yeah, hi, Madhu. Hi. So Madhu, Amit will be the trainer, and Okay. going forward, you will be communicating with Amit regarding any question or any queries. Okay. Yeah, okay. Okay, Uh, so Amit, so please go ahead and start the session. okay. So, Madhu, just want to ask one thing. With the course detail which Satish has shared, it contains most of the development aspects. So, are you aware with the admin part? Have you ever know the basics of the Salesforce or the other things? Sorry, can you repeat it again? I'm asking you the course detail, the course structure, which are just shared by the Satish. It contains most of the things which are related to the development part. So I'm asking to you, are you aware with the basic admin things? Means what are Yeah. the sales? Yeah. Yeah. Okay. Okay. So you are means a IT professional having an experience in IT. You are switching your domain. Yeah. Okay. Okay. So basically, you must have knowledge about the basic programming aspects. So Yeah. before proceeding into the Salesforce, I'm just letting you one thing. The Visual Force part we will come a few weeks later because we will start with the basic Apex development, the SQL, SSL queries. Once you are aware with them, then we will start with the Visual Force pages. Apart from that, we are going forward. Okay. Okay. So do you understand Hindi? Yeah. Okay. So somehow I can go bilingual if you have any issue. Like I can go in English as well. But if I go bilingual, then let me know if you have if you face any issue. Okay. Okay. So as you know the basic admin part, let me open one org. Okay, so you must have basic idea about the Salesforce flows, Salesforce workflows, and process builders. आप बहुत aware होगे इससे. Sure. Standard and Process custom builders, objects. I don't know. Mm-hmm. And yeah, flows also, I don't know. So you don't know. So, Okay, you have little experience with the workflows. आप workflow जानते होगे कि there are 3 conditions workflows में क्या क्या 4 चीजें होती हैं. These things you know. yeah. Okay. So basic structure. Have you even gone through with the
do you know what is the basic sales cycle inside the sales course? जैसे अगर आप मैं बात करूँ basic sales cycle की, so what is the No, aspect of it's not clear. Not clear वो. okay, so अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, which will cover the aspects of the leads, tasks, opportunities, account, contact. Why these are the other objects in our means why the Salesforce has created several apps. Basically, I'm going to tell you. This is the setup menu, okay, through which we can go for the setup of our org. Okay, this is called the app launcher. Okay, Your screen is not shared, Amit. okay, my screen is not sure. Sorry. Is it visible now? Yeah. Okay. So मैं बेसिक एक चीज बता रहा था इसमें कि like in Salesforce, like these are the 9 dots. 9 dots are called app launchers. ठीक है. So Mm-hmm. app launcher में क्या होता है कि what are the default apps given by the Salesforce? Those apps are visible here. ठीक है. एंड बेसिकली सेल्सफोर्स ने ऑलरेडी कुछ एप्स जो हैं वो बिजनेस के अकॉर्डिंग उन्होंने एक जनरल डिफॉल्ट व्यू बना के दे रखा है. सपोज आप कोई एक ऐसी कंपनी है which is into sales, so you can handle a basic structures for the learning purpose. You can handle the basic structure related to the sales. अगर कोई आपकी कंपनी है जो कि सर्विस का पार्ट देखती है तो यू कैन हैंडल दिस बेसिक सर्विस कंसोल पार्ट. In the same way, marketing and service. The service console and service are two different things. Console has more adaptability. उसमें कुछ और functionalities होती हैं जैसे कि लाइव कॉलिंग चीज से अटैच होती हैं. मैं एक आपको बेसिक सा स्ट्रक्चर व्यू दे रहा हूँ जैसे कि एक बिजनेस कैसे रन होता है उसमें क्या क्या एस्पेक्ट होते हैं. तो आपको समझ आएगा कि why these standard objects are given inside the Salesforce and why the Salesforce is charging more for these standard objects. क्योंकि अगर आप लाइसेंसिंग की बात करो सो आपको थोड़ा सा एक आइडिया होगा लाइसेंसिंग का. ठीक है. तो सेल्सफोर्स पे बेसिकली 3-4 तरह के लाइसेंसेस हैं. प्लेटफॉर्म बोल लेता हूँ. अगर आप देखोगे तो बेसिकली एसेंशियल्स, प्रोफेशनल, एंटरप्राइज एंड अनलिमिटेड, ये आपके 4 टाइप्स ऑफ प्राइसिंग है लाइसेंसेस की. और होता क्या है लाइसेंसेस जब आपके बढ़ते हैं तो वॉट एवर द स्टैंडर्ड फीचर्स, जितने स्टैंडर्ड फीचर्स होते हैं वो आपको ज्यादा मिलते जाते हैं. अगर आप लाइसेंस आपके छोटे होते हैं, सस्ते लाइसेंस होते हैं, तो क्या होता है कि उस केस में आपको डेवलपमेंट का पार्ट आपको ज्यादा देखना पड़ता है. तो द हायर द लाइसेंसेस, द हायर द स्टैंडर्ड फीचर्स विल बी गिवन टू यू. तो मैं बताना चाहता हूँ कि वो जैसे इनके ये जो सेल्सफोर्स के जो पार्ट्स हैं लाइक अपॉर्चुनिटी एंड अकाउंट्स, these have n number of features और n number of features आपके हायर लाइसेंसेस में ही आपको देखने को मिलते हैं. if you purchase like cheaper licenses it will not be there. so एक बेसिक से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ. सपोज एक शूज की कंपनी है. सपोज देयर शूज कंपनी और उन्होंने क्या किया, अभी भी उनकी नई कंपनी स्टार्ट हुई है. ओके. सो कोई भी बिजनेस होता है वो बिजनेस दो तरीके से बिजनेस करता है. एक तो हो सकता है कि एक एंड कस्टमर को बिजनेस कर रहा हो. सपोज एक शूज कंपनी है, ठीक है, और वो किसी एंड यूजर, मैं वहां पर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द शॉप, आई एम द एंड कस्टमर, वो मेरे को शूज बेच रहा है. ओके. और एक चीज जो हो सकता है कि दैट शू कंपनी इज मेकिंग बिजनेस विद अनदर कंपनी, that it may be the B2B business and B2C business, business to consumer and business to business. So किसी भी कंपनी के लिए B2B business बहुत ही आस्पेक्टफुल होता है because what happens in that कि वहाँ पे बल्क में ऑर्डर्स आते हैं और it is continuous process. So एक कोई शू कंपनी है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ एंड आई विल एक्सप्लेन द ऑब्जेक्ट्स का उनका क्या सिग्निफिकेंस है. तो शू कंपनी के पास इसमें एक कैंपेन का ऑब्जेक्ट दिखा देता हूँ आपको.
जैसे कि उन्होंने शूज के लिए, तो अब उन्होंने क्या किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि किसी भी सेल साइकिल में सबसे पहले आप कैंपेनिंग करते हो, देन आपकी लीड्स आती हैं, वो लीड्स आपकी कन्वर्ट होती हैं, ठीक है, देन आपका कोटेशन का प्रोसेस आता है, कोटेशन और कॉन्ट्रैक्ट का प्रोसेस आता है, और देन आपका ऑर्डर प्लेस होता है। और ऑर्डर प्लेस होने के बाद ये बेसिकली एक सेल साइकिल है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ। सबसे पहले हम कैंपेनिंग करते हैं, कैंपेन होते हैं, फिर आपकी लीड्स आती हैं, देन दीज लीड्स डिफरेंट, देन क्या होता है आपका लीड कन्वर्जन होता है। The leads are converted into account, contact and opportunity. ओके, और फिर क्या होता है कि इसके होने के बाद समटाइम्स आपका कोड बनता है, कोड, कोड्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सब आपके प्रोसेसेस आते हैं, देन फाइनली आपका ऑर्डर प्लेस हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली एक टिपिकल सेल साइकिल इसने स्टेप्स इन्वॉल्व करती हैं। अलग अलग बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अलग अलग बिजनेस की अलग अलग सेल साइकिल होती हैं। तो कुछ बिजनेस और कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, कुछ बिजनेस और स्मॉल हो सकते हैं। देन आपका सर्विस पार्ट आता है कि आपने अगर शूज वूज बेच दिए, ठीक है, सपोज अगर किसी को कोई भी इशू आता है, आपके पास उसकी वारंटी भी है, गारंटी भी आप दे रहे हो, कोई सारी चीज आप दे रहे हो शूज में, ठीक है। तो अगर आपको किसी को कॉन्टेक्ट करना पड़ता है तो आप कितने चैनल से आप सपोर्ट देते हो, कि मान लीजिए कि आपका कोई कस्टमर है और वो शूज ले गया, देन इट शूज गॉट ब्रेक डाउन, तो आप उन्हें कौन सा सपोर्ट दे रहे हो, कि आप हमारी वेबसाइट पे आइए, हमारे पास शूज की वेबसाइट है, आप यहाँ से ये ईमेल लिखी हुई है, आप ईमेल करो। तो आपने एक सही तरीका हो सकता है कि आप ईमेल सपोर्ट देते हो, ठीक है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आपने वहाँ पे कोई एक टोल फ्री नंबर दे रखा है, और आप जब से जैसे कोई उस पर कॉल करता है तो आपके कुछ लाइव एजेंट्स बैठे हुए हैं, वो आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर रहे हैं। तो आप वहाँ पर ईमेल सपोर्ट हो सकता है, दूसरा आपका कॉलिंग सपोर्ट हो सकता है, आप व्हाट्सएप सपोर्ट भी दे सकते हो, ठीक है। दीज आर द टिपिकल सर्विसेज जो कि एक सर्विस पार्ट में होती हैं। तो वो भी सर्विसेज रेज कर रहे हैं, वो अगर केस के फॉर्म में जाती हैं। तो ये एक बेसिकली सेल्स का पार्ट हुआ, और बेसिकली ये एक सर्विस का पार्ट हुआ। तो अभी एक एस्पेक्ट लेते हैं, छोटा सा सिनेरियो लेते हैं, और वी विल अंडरस्टैंड कि हर एक चीज का सिग्निफिकेंस क्या होता है। अगर आपको कोई चीज बीच में नहीं समझ में आती है तो आप मेरे को बीच में टोक देना, मैं आई विल रिपीट दैट नथिंग, ठीक है Okay. मधु? ओके। Okay. तो जैसे आपकी एक शू कंपनी है, ठीक है, तो शू कंपनी अभी नई नई स्टार्ट हुई है, सो उसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो शू कंपनी ने अभी अपना एडवर्टीजमेंट स्टार्ट किया, उसने अपनी कैंपेनिंग स्टार्ट कर दी। कैंपेनिंग के अलग अलग तरीके हैं कि वो ब्रोशर्स ले लें, ब्रोशर्स को बांटना शुरू कर दें, पैम्पलेट्स बांटना शुरू कर दें, ठीक है, या फिर वो खुद के रोड शो कर रहे हैं, अपने एक ट्रक लेके उन्होंने रोड शो कर रहे हैं कि दीज आर द स्पेसिफिक क्वालिटी ऑफ माई शूज। जैसे कि वुडलैंड के शूज होते हैं, दैट आर वेरी हार्ड शूज, मतलब रफ एंड टफ शूज हो गए, अलग अलग कंपनीज के अलग अलग हो गए, रेड टेप के शूज जैसे हो गए। सपोज आई डोंट नो व्हाट इज द स्पेशलिटी, बट हाँ, अलग अलग कंपनीज के अलग शूज की स्पेशलिटी होती है। रेड चीफ है तो लेदर ही होगा, जैसे कि ब्रांडिंग है। तो आपके शूज की जो भी क्वालिटी है, जो भी चीजें हैं, आप वो मतलब बच रहे हो। जैसे कि कैंपस और स्केचर्स के शूज हैं, जैसे बेसिकली स्पोर्ट शूज हो गए, तो आप उसकी ब्रांडिंग कर रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो। सबसे पहला पार्ट हुआ कि आप कैंपेनिंग कर रहे हो। तो एक कैंपेनिंग के पर्पज से, जैसे कि इलेक्शंस आते हैं तो फिर जो भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, दे स्टार्ट डूइंग कैंपेनिंग्स। तो एक कैंपेन के पर्पज से, एक जनरल कैंपेनिंग पर्पज से, व्हाट आर द फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। अगर आपको किसी चीज में कैंपेनिंग करती है तो व्हाट आर द इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो भी रिक्वायर्ड होती है वो यहाँ पर हमें दे के रखते हैं। जैसे कि एक Mhm. कैंपेन का नाम क्या हो सकता है, कि कैंपेन किस टाइप की, आप कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हो, वेबिनार कर रहे हो, ट्रेड शो कर रहे हो, लिस्टिंग कर रहे हो। तो इस तरह की चीजें जो है वो बेसिकली सेल्स फोर्स ने अपने एक्सपीरियंसेस से गैदर की होंगी, उन्होंने आपको एक पहले से आपको एक बना के दे दिया ऑब्जेक्ट। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट, दीज आर द टाइप ऑफ कैंपेनिंग। ओके, आपके ये आप किस डेट को कर रहे हो, क्या डेट होगी, कितना आप पैसा खर्च कर रहे हो, कितना आपका बजट है, कितना आपका पैसा आ सकता है। तो दीज आर द एक्सपेक्टेड थिंग जो कि एक कैंपेनिंग में होती हैं, वो सेल्स फोर्स ने ऑलरेडी आपको दे रखी हैं। कैंपेनिंग के बाद आपके कुछ कैंपेनिंग मेंबर्स भी हो सकते हैं। सपोज आपने कैंपेनिंग स्टार्ट की, आपने कोई रोड शो भी कर रहे हो, आपने पैम्पलेट भी छपवाया, आपने सबको बांट दिए, रोड शो भी आपने स्टार्ट कर दिया। देन व्हाट हैपन कि कुछ बंदे जो हैं वो आपके पास खुद से चल के आ गए कि नहीं नहीं, मधु का ये शूज तो है, वो तो अच्छे हैं, आई मीन इंटरेस्टेड इन। तो जो आपके पास खुद से आ रहे हैं, इंडिविजुअल जो आपकी लीड्स आ रही हैं, तो उसमें आप ना लीड को कैटेगराइज करते हो, दैट इट इज हॉट लीड और कोल्ड लीड और बॉम्ब लीड।
when you go for the leads, there are several type of. तो suppose कोई बंदा आपके पास खुद चल के आ गया, so it will be considered a hot lead. ये तो बंदा खुद ही आ रहा है हमारे पास, रेटिंग ये हुई. Hot from cold, ठीक है. वार्म का मतलब है someone was showing your show. सपोज कोई आपका शो देख रहा था और आपने उसको नोटिस कर लिया, तो आप खुद के पास बोला, आपके जो भी कैंपेन मेंबर्स है, जो भी बंदे हैं जो भी कैंपेनिंग कर रहे हैं, वो खुद पास हो गया, उनसे डिस्कस किया और उन्हें पैम्फलेट दिया, उन्हें उस बारे में बताया. तो somehow he was interested but he was not coming to you. It is a warm lead. Suppose a third person who is going from your shop, who is going from your campaigning team, and it is not aware, वो आपको ध्यान भी नहीं दे रहा, but your campaign members went to that guy, उन्होंने उसको खुद पैम्फलेट दिया, उसके बारे में बताया कि ये चीज ऐसी ऐसी है, मतलब he is approaching that guy to purchase the shoes. That is kind of a cold lead. He is not interested. जैसे cold callings होती हैं, we have to make the new clients, उसी तरह से cold calling होगी. तो ऐसे जो बंदे हैं, ये आपके लीड्स हो गए. These are the potential customers which can purchase your shoes. तो मैं आपको टाइप बता दी है कि आपके हॉट लीड कौन है, जब खुद चल के है, हॉट, वार्म और कोल्ड. These are the type of lead. यही लीड की इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे शो करते हैं कि वो लीड का नाम, अब वो जो भी कैंपेन मेंबर था उसके पास गया, उसने उसका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल, सब कुछ ये चीजें, जितनी पैसों चीजें थी उसने ले ली उनसे. एटलीस्ट कि अभी तो नहीं ले रहे वो, बाद में दे कैन फॉलो अप, और वो फॉलो करके उनसे वो क्लोज कर सकें. तो ये एक टाइप की लीड हो गई, जो कि आपकी B2C हो गई. आप बिजनेस टू एंड कस्टमर से डील करते हो. आपके कंपनी के कुछ जो आपके सेल्स पर्सन है, वो बहुत ही, मतलब ये कह सकते हो कि बहुत ही मोटिवेटेड है. तो दे आर ट्राइंग टू सेल दियर शूज टू द कंपनीज, डायरेक्टली कंपनीज को करेंगे. तो उन्हें क्या पता चला कि एक ABC कंपनी है जो कि अपने एम्प्लॉयज को शूज देने वाली है. इट हैज अप्रोक्सीमेटली 500 एम्प्लॉयज. अब 500 एम्प्लॉयज है उस कंपनी में, और आपकी जो शू कंपनी है वो अब अप्रोच कर रही है उस ABC कंपनी को, कि ABC कंपनी अपने एम्प्लॉयज को शूज देने वाली है, अगर हमें वहां का ऑर्डर मिल जाता है तो हमारे 500 के शूज अप्रोक्सीमेटली बिक जाएंगे. ठीक है. सो दे स्टार्टेड ट्रैकिंग, फॉलोअपिंग. अब क्या होगा कि उस कंपनी में भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं. अकाउंट्स का अलग होगा, मार्केटिंग का अलग होगा, परचेसिंग का अलग होगा, जो भी होंगे. तो HR का अलग होगा. आई डोंट नो विच काइंड ऑफ डिपार्टमेंट होल्ड्स दिस थिंग. सपोज कोई भी एक डिपार्टमेंट है जो कि शूज की प्रोक्योरमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर है. तो उस डिपार्टमेंट में 2 या 3 की पीपल होंगे जिनसे वो बात कर रहे होंगे. यही वो की पीपल्स हैं जो वो बात कर रहे होंगे. ठीक है. तो अभी ऐसा कि आपको एडमिन पार्ट पता है, सो यू मस्ट नो द बेसिक लीड कन्वर्जन. कि जब लीड कन्वर्ट होती है तो हमारे पास अकाउंट, कॉन्टेक्ट एंड अपॉर्चुनिटी बनती है. यू नो, जब लीड कन्वर्ट होती है तो हमारी अकाउंट, कॉन्टेक्ट एंड अपॉर्चुनिटी बनती है, राइट? हाँ. ठीक है. तो अभी जैसे ये जो लीड बनेगी हमारी, सपोज दिस इज द लीड, ओके, और ये लीड जब हमारी कन्वर्ट होगी, ठीक है, तो दिस लीड विल बी कन्वर्टेड इनटू अकाउंट, कॉन्टेक्ट एंड अपॉर्चुनिटी. ये 3 चीजें आपकी बनेंगी. ठीक है. सपोज ये जो हमारी लीड है, ये जब कन्वर्ट होगी, तो अगर आपका कोई कस्टमर, एंड कस्टमर है, मतलब एंड यूजर है, मतलब कोई अगर पर्सन है, तो फिर आपकी लीड जो बनेगी वो उसी के अकाउंट के नाम की बनेगी, उसी का कॉन्टेक्ट बनेगा. और जो अपॉर्चुनिटी जो होती है, अपॉर्चुनिटी बेसिकली द कस्टमर का जो भी इंटेंडेड पार्ट होता है. आई एम टेलिंग यू इन द राइट सिनेरियो. बिजनेस में जो भी एक्चुअल में इंडस्ट्रीज में होता है कि अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए अपॉर्चुनिटी वो चीज होती है जिसमें वो की कस्टमर इंटरेस्टेड है. तो अपॉर्चुनिटी का नेमिंग कन्वेंशन थोड़ा चेंज भी हो सकता है. सपोज मान लीजिए कोई बंदा था, सतीश नाम है उसका, उसने शूज के लिए आया, ठीक है. तो आपने उसकी एक लीड बना ली कि सतीश की इन्फॉर्मेशन आपने शोर कर दी. आपको पता लगा कि सतीश इज इंटरेस्टेड इन बाइंग योर शूज, और आपने इसे कन्वर्ट किया. तो सतीश नाम का एक अकाउंट बनता है, सतीश नाम की एक अपॉर्चुनिटी बनती, कॉन्टेक्ट बनता है, और सतीश नाम की एक अपॉर्चुनिटी भी बनती है. अब अपॉर्चुनिटी आपके सतीश डैश हाइफन जिस टाइप ऑफ शूज में वो इंटरेस्टेड हो सकता है कि उसका नाम हो, अलग अलग चीजें होती हैं. तो ये चीजें मैटर करती हैं कि अपॉर्चुनिटी का जो नेमिंग कन्वेंशन होता है वो आपके कस्टमर के नाम, ठीक है, और साथ में जो भी इंटेंडेड पार्ट है उसकी चीजों को मिक्सअप हो सकता है. ये अपॉर्चुनिटी का नेमिंग कन्वेंशन होता है. दैट इज आई एम टेलिंग यू. ठीक है. ठीक है. देखिए ये, और जैसे कि आपने लीड कन्वर्जन पढ़ा है, तो लीड कन्वर्जन में 2 चीजें होती हैं. अकाउंट आपके 2 तरह के होते हैं, एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है बिजनेस अकाउंट. ठीक है. तो जो भी आपके एंड कस्टमर्स हैं, जो कि ये B2C वाला आपका बिजनेस चल रहा है, तो वो कस्टमर्स होते हैं वो आपके पर्सनल अकाउंट में काउंट होंगे. कि सतीश के नाम का है तो सतीश नाम का ही अकाउंट बनेगा. बट इन केस यू आर अप्रोचिंग अ ABC कंपनी,
सो एबीसी कंपनी विल बी क्रिएटेड एज अ अकाउंट। वहां पे जो अकाउंट बनेगा वो एबीसी कंपनी के नाम का बनेगा। आई एम टेलिंग यू, व्हाई आई एम टेलिंग यू, बिकॉज आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ अकाउंट एंड कॉन्टैक्ट्स। आप समझना, ठीक है। आपके जो सेल्स के बंदे हैं उन्होंने एबीसी कंपनी को अप्रोच किया क्योंकि एबीसी कंपनी 500 शूज परचेज करना है अपने एम्प्लॉयज के लिए, ठीक है। अब एबीसी शूज के 500 जो जो आपकी कंपनी की जो सेल्स टीम है वो एबीसी शूज पे जिस डिपार्टमेंट के 2 या 3 की पीपल को ट्रैक कर रहे हैं, उनसे फॉलो अप ले रहे हैं कि सर आपका ये कब होने वाला है, कितने शूज चाहिए, कैसे शूज चाहिए, उनको चीजें बता रहे हैं। तो एबीसी कंपनी जब आपकी, तो वो एबीसी कंपनी आपके लिए एक लीड हुई, भले ही उसने आपको अप्रोच नहीं किया। एबीसी कंपनी आपके लिए एक लीड हुई और वो अपने एक कोर लीड होगी क्योंकि आपकी सेल्स टीम उनको वो कर रही है। जैसे भी होता है तो फिर लीड कन्वर्जन में कुछ स्टेटस होती हैं कि अभी उनसे कांटेक्ट हो गया, हाँ कांटेक्ट चल रहा है, लीड क्लोज होने वाली है, क्लोज नहीं होने वाली है, तो ये इसमें भी कुछ स्टेटस होती हैं। अब वो एबीसी कंपनी है, वो आपकी किस टाइप की कंपनी है, वो सपोज एक बैंकिंग कंपनी है, लीड सोर्स क्या है, तो फोन इंक्वायरी के थ्रू मिला, रेफरल के थ्रू मिला, तो दीज आर द इंफॉर्मेशन व्हिच हैज सेल्सफोर्स आपने आपको सेल्सफोर्स आपको एक पहले से ये कि आपको एक टेम्पलेट बनाकर दे रखा है कि आप ये स्टोर कर सकते हो, ठीक है। उस कंपनी की ईमेल क्या है, ये हो गया। तो और कंपनी का नाम क्या है, एबीसी लिमिटेड, जिससे आप कांटेक्ट कर रहे हो अभी, ठीक है। तो क्या होगा, व्हेन एबीसी लिमिटेड, जब आपकी एबीसी लिमिटेड जब आपकी कन्वर्ट होगी तो जो अकाउंट बनेगा उसका नाम होगा एबीसी लिमिटेड, करेक्ट। और जैसे कि जो 2 बंदे एबीसी लिमिटेड के आपके सेल्स टीम से कांटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो वो 2 कॉन्टैक्ट उस अकाउंट के अंडर बनेंगे। दीज आर द की पीपल, दीज आर द की कॉन्टैक्ट्स फॉर दिस कंपनी टू गेट अर ऑर्डर प्लेस्ड। तो जो एबीसी लिमिटेड कंपनी के जो भी प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, परचेसिंग डिपार्टमेंट के जो भी 2 की पीपल हैं, तो दोज की पीपल विल बी कंसीडर्ड एज अ कॉन्टैक्ट फॉर दैट कंपनी। And then suppose they are trying to buy 500 shoes। अब वो सपोज स्पोर्ट्स शूज हैं या फिर फॉर्मल शूज हैं, वो सब फॉर्मल शूज हैं। सो इट मे बी द नेमिंग कन्वेंशन फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन कि जैसे ही वो कंपनी लीड कन्वर्ट हो रही है, जो अपॉर्चुनिटी बनी है उसका नाम हो गया एबीसी लिमिटेड कोलन 500 फॉर्मल शूज, ठीक है। तो इससे ये होता है कि दिस इज द अपॉर्चुनिटी, लाइक एबीसी लिमिटेड जो है वो 500 शूज परचेज करने वाली है फॉर्मल टाइप। तो ये आपका बेसिक लीड कन्वर्जन होता है जहाँ पे आपके लीड ऑब्जेक्ट, आपका अकाउंट, कॉन्टैक्ट एंड अपॉर्चुनिटी और आपका कैंपेनिंग, दीज आर द सेवरल ऑब्जेक्ट आपके कवर होते हैं, ये इनका सिग्निफिकेंस होता है। फिर आपके अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट पे क्या होता है, आपकी सेल्स टीम काम करना शुरू करती है। सपोज मान लो कि आपकी बहुत बड़ी आपकी कोई कंपनी के लिए अप्रोच कर रहे हो, तो अपॉर्चुनिटी में भी आपके होते हैं अपॉर्चुनिटी टीम मेंबर्स, ऑब्जेक्ट कॉल्ड अपॉर्चुनिटी टीम मेंबर्स। तो एक ही कंपनी से ऑर्डर प्लेस करवाने के लिए आपकी सेल्स टीम के 3 से 4 बंदे लगे हुए हैं, कंटिन्यू फॉलो अप ले रहे हैं। तो वो 3 से 4 बंदे जो है वो आपके एज अपॉर्चुनिटी टीम मेंबर कंसिडर किए जाएंगे, अपॉर्चुनिटी टीम मेंबर कंसिडर किए जाएंगे। तो आपने 4 लोगों की टीम बना दी कि आप 4 लोग जो हो वो जो इस अपॉर्चुनिटी पे काम करोगे, आपको ये क्लोज करनी है अपॉर्चुनिटी। तो अब आपने अपॉर्चुनिटी में भी देखा होगा कि कॉन्टेक्टेड, वर्किंग, इनिशिएटेड, प्रोस्पेक्ट, देयर आर एन नंबर ऑफ स्टेजेस। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाते हैं वो और स्टेज पे आगे बढ़ते चले जाते हैं। जब फाइनली आपकी अपॉर्चुनिटी क्लोज होती है तो आपका ऑर्डर प्लेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या तो आपका क्लोज होगा, क्लोज वाउंड होता है, या तो आपका क्लोज लॉस होता है। यू मस्ट हैव सीन इन द अपॉर्चुनिटी स्टेजेस। आर यू गेटिंग? Yeah. तो इतना आपको मतलब समझ आया कि these are the basic significance of these objects, राइट? Hmm. ठीक है, तो अब दूसरा चीज और बता रहा कि आपका लीड हुआ, सब आपका कैंपेन स्टार्ट हुआ, कैंपेन के बाद आपका अकाउंट कॉन्टेक्ट अपॉर्चुनिटी बन गया। अभी तक आपको इसमें कोई डाउट है अपॉर्चुनिटी कन्वर्जन तक का? No. नो? No. No. Amit. ओके, देन व्हाट हैपेंस अब अपॉर्चुनिटी पर आपने कुछ स्टेटस देखे होंगे। जब मैं अपॉर्चुनिटी का ऑब्जेक्ट खोलता हूँ, सपोज क्या पे कुछ कुछ प्रोस्पेक्टिंग है, क्वालिफिकेशन है, नीड्स एनालिसिस, वैल्यू प्रोपोजिशन, एडी डिसीजन मेकिंग, परसेप्शन एनालिसिस, और देन फाइनली आपकी लीड क्लोज होती है। तो कुछ कंपनीज होती हैं जो पहले आपसे कोटेशन मांगती हैं कि अच्छा ठीक है, एबीसी लिमिटेड को 500 शूज चाहिए,
जब भी आपका निगोशिएशन हो पार्ट होता है, जब आप वो निगोशिएशन पार्ट में ऐसा हो सकता है कि वो कंपनी बोले कि अच्छा मधु के जो शूज हैं ये आपके 500 शूज में आपको परचेस कर रही हूँ, आपका एक शूज 2000 का, तो हमें कुछ डिस्काउंट तो दो, हम बल्क में ले रहे हैं। वहां पे देन दे निगोशिएट सपोज, तो वहां पे आपका डिस्काउंट का भी ऑप्शन आ सकता है। इन द एडमिन पार्ट यू मस्ट हैव अवेयर विद द अप्रूवल प्रोसेस। ठीक है, अप्रूवल प्रोसेस में आपका कुछ डिस्काउंट अप्रूवल, अगर आपने टेल हेड किया होगा तो टेल हेड में एक डिस्काउंट अप्रूवल प्रोसेस है कि कैसे आपका अप्रूवल जाता है। सपोज कि आपका जो सेल्स का बंदा है, उन्होंने आपसे 1500 मतलब 2000 का आपका शूज था और 1500 रुपए मतलब 500 ऑफ का आपसे डिस्काउंट मांगा उनसे, बट आपके सेल्स के बंदे के पास अथॉरिटी नहीं है इतना अप्रूवल देने की। उसने कहा मैं आपको 200 तक की छूट दे सकता हूँ, डिस्काउंट दे सकता हूँ, मैं फर्दर नहीं बोल सकता। देन कुछ मोर डिस्काउंट के लिए he will have to get the approval of his सेल्स मैनेजर। तो कुछ ऐसे प्रोसेस आप सेटअप करोगे सिस्टम में कि देयर इज अप्रूवल प्रोसेस कि सर एबीसी लिमिटेड जो कंपनी है उन्हें इतने शूज परचेस करने 500 शूज एंड दे आर आस्किंग फॉर द 500 रुपीज डिस्काउंट पर शूज, and so for my capability I am able to give only 200 rupees discount, so I need approval। तो वहां से फिर वो अप्रूवल लेते हैं, देन वो उन्हें ये करते हैं। तो यहाँ पे आपकी अप्रूवल प्रोसेस भी पिक्चर में आ रही है कि इस तरह से सेल्स फोर्स का वर्क होता है। ओके, एंड देन क्या होता है कि आफ्टर द लीड जब फाइनली उनसे डन हो गया, ठीक है उन्होंने डिस्काउंट पे मान गए, एंड देन फाइनली जब आपकी कीज क्लोज वॉन हो जाती है आपकी अपॉर्चुनिटी, सपोज तो आपके 500 प्रोडक्ट्स जो भी शूज वो ले रहे हैं, दिस प्रोडक्ट विल बी एडेड हेयर, and those products when will be added here, those products will be called as opportunity line items। और फिर देन एबीसी कंपनी वो भी पूछ सकती है आपसे कि आप मेरे को कोटेशन दे दो पहले, आप ऑर्डर प्लेस करने से पहले। सो अपॉर्चुनिटी के बाद आपका कोड बनता है, द कोड इज द स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट दिस इन द सेल्सफोर्स, QUOTE। अभी वो विजिबल नहीं है, एक सेटिंग इन्वर्ट करना पड़ेगा। सो कोड बनता है, कोटेशन में सब चीजें होती हैं और कोड के अंदर सेम वे प्रोडक्ट्स आते हैं तो हम उन्हें बोलते हैं दीज आर द कोड लाइन आइटम्स। एंड देन फाइनली योर ऑर्डर गेट्स प्लेड, कोड के बाद आपका ऑर्डर प्लेस होता है। कुछ बड़ी कंपनीज होती हैं जहां पर कॉन्ट्रैक्ट्स भी पिक्चर में आता है। कॉन्ट्रैक्ट्स अभी आपको शायद ना विजिबल हो, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स एक ऑब्जेक्ट होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट्स में भी कुछ सर्विस एग्रीमेंट्स या फिर जो भी आपके सेल्स के एग्रीमेंट्स हैं वो आपके यहाँ पर आते हैं, पिक्चर में आते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स, जो बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं जैसे कि जो एप्टेस यूज कर रही होती हैं। आर यू अवेयर विद द एप्टेस? No. एप्टेस बेसिकली इनका एक टूल है जो कि बेसिकली सेल्स प्रोसेस में यूज होता है। कॉन्फ़िगर प्राइस कोड, सीपीक्यू, एप्टेस कुछ चीज एक टूल्स होते हैं इनके। सीपीक्यू भी होता है, एप्टेस भी होता है। तो ये कुछ टूल्स होते हैं जो कि बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे होते हैं वो उतने यूज करते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रोसेसेस को वो बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में आपको पहले से टूल बना के दे देते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, आपका ऑर्डर प्लेस हो जाता है। दीज आर द बेसिक थिंग्स व्हिच आर सेल्स फोर्स इन्वॉल्व्स। ये आपकी चीजें होती हैं जिनका मेन सिग्निफिकेंस आपके सेल्स प्रोसेस में होता है। ठीक है, सो बस मैं आपको इतनी बताना चाहता था, दीज आर द बेसिक सिग्निफिकेंस। कमिंग टू द एक्चुअल सिनेरियो पार्ट, कभी कभी क्या होता है कि कुछ बिजनेसेस के लिए आपके ये ऑब्जेक्ट यूज होते हैं, सम बिजनेसेस डोंट यूज दीज स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स। कुछ सपोज मान लो कि आपका कोई एनजीओ है, ठीक है, तो they will not use these objects, उनके कुछ सेपरेट ऑब्जेक्ट्स होंगे, they will store their information, those information there। if we purchase higher number limits costly licenses, तो आपको से सारे के सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं, अपॉर्चुनिटी अकाउंट एंड देन if you purchase cheaper licenses, जैसे कि आपके पास if you go for the you must aware with the Salesforce user। Mm-hmm. मैं Salesforce यूजर पे आ रहा हूँ, आपने Salesforce यूजर पे काम किया होगा, एडमिन में देखा भी होगा। तो यूजर अब जैसे दिस इज द यूजर इंफॉर्मेशन, ओके, यूजर नेम, ईमेल, दिस थिंग, हिज रोल, हिज प्रोफाइल एंड हिज लाइसेंस। दिस इज द वेरी एस्पेक्ट थिंग। अगर आप इसको एडिट करो, so you must be knowing license, okay, don't use this thing।
you go for the new user, ये देखोगे these are the several kind of licenses. सबसे जो कॉस्टली लाइसेंस होता है आपको वो सेल्सफोर्स लाइसेंसेस है. अगर आप कुछ चीपर लाइसेंस में जाते हो, इट इज अ सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म लाइसेंसेस. तो इस अगर आप कोई यूजर बनाते हो सेल्सफोर्स में, आर यू अवेयर विद द यूजर? हेलो मधु, Yeah, मीवाइल, आर यू अवेयर विद द यूजर? yeah. ठीक है. So far as you must have seen the users with the Salesforce licenses. Okay. So suppose there's a user who has Salesforce platform license. तो platform license के केस में क्या होता है कि यूजर को जो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है अपॉर्चुनिटी, तो दे डू नॉट हैव एक्सेस ऑफ द अपॉर्चुनिटी इन द अकाउंट ऑब्जेक्ट. उन्हें इसका एक्सेस नहीं मिलता. बिकॉज व्हाई? बिकॉज दे आर यूजिंग a cheaper license. Salesforce platform is a cheaper license which do not give access to some of the standard objects like opportunity, account, and lead. I'm not sure. Two of the objects are not shared with the Salesforce platform licenses. So it is a basic thing I wanted to tell you. Mm. Okay. So थोड़ा सा एक पार्ट बताना चाहता हूँ कि it was a basic sales cycle. ठीक है. And that is how Salesforce given us a pre-built app like sales. And there is a service console. If you click here, तो सर्विस पार्ट में क्या है, आपका केसेस आते हैं, केस मैनेजमेंट आ गया, लाइक दीज आर द केसेस. ठीक है. सपोज जैसे आपने कोई अमेजोन या फ्लिपकार्ट से आपने कोई भी ऑर्डर मंगाया. ठीक है. ऑर्डर में आपको कोई भी इशू आया, देन यू रेज अ कंसर्न और रेज अ कंप्लेन. ओके. सो दो वो रेज जो आप ये कंसर्न रेज करते हो, इट इज कंसीडर्ड एज अ केसेस इनसाइड द सेल्स फोर्स. कि सपोज आपके शूज के जो लेसेस है वो खुल जा रहे हैं, या फिर आपकी जो सोल है वो आपकी खराब हो गई है. सो यू हैव सेंट यू हैव कॉल्ड द कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव. तो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव ने यहाँ से सेल्सफोर्स से डायरेक्टली आपके बात की इस टूल के थ्रू. ठीक है. वो आज आपसे बात की और आपके रिगार्डिंग एक केस रेज कर दिया. ठीक है. अगर आप इंडिविजुअल केस रेज कर रहे हो, तो वो केस आपके जो भी कांटेक्ट है, जब आपने शूज लिया था तो आपकी लीड कांटेक्ट और अपॉर्चुनिटी बनी होगी. ठीक है. तो वो केस आपके कांटेक्ट से टैग कर दिया जाएगा कि हाँ इनका कांटेक्ट था या फिर इनका अकाउंट था. अगर कोई कंपनी केस रेज करती है, सपोज एबीसी के किसी एम्प्लॉय ने केस रेज किया, ठीक है ना, तो वो केस टैग होगा उस अकाउंट से, एबीसी लिमिटेड कंपनी के अकाउंट से टैग हो जाएगा. ठीक है. कि हाँ ये इनका केस है, और उस अकाउंट के अंदर जो भी बंदा केस रेज कर रहा है, जो भी है, तो वो उसकी डिटेल्स वहां पे आ जाएगी कि ये कॉन्टेक्ट पर्सन है, इनके बेसिस से केस रेज हुआ है नहीं हुआ है, जो भी चीजें हैं. फिर हम लोग केस रिजोल्यूशन करते हैं कि केस में भी फिर 10 चीजें आती हैं. कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी कंपनी में केस का एस्केलेशन हो जाता है. यू मस्ट हैव अवेयर विद, मतलब शायद आपने सुना हो, असाइनमेंट रूल्स एंड एस्केलेशन रूल्स इनसाइड द सेल्सफोर्स. असाइनमेंट रूल क्या होता है कि अलग अलग क्यू को असाइन होते हैं, ये कुछ सेल्स के टर्म्स में होते हैं. जैसे मान लो कि आपकी सूखी कंपनी बहुत बड़ी हो गई है. ठीक है. और आप ऑल ओवर इंडिया फैल गए हो, आपके शूज बहुत ज्यादा चल रहे हैं. ठीक है. सो अब ऑल ओवर इंडिया से अगर मान लो कि आपने सेल कर दी, तो डेफिनेटली ऐसा होता है कि कोई ना कोई शूज में खराबी आएगी ही आएगी. वो हर कंपनी के साथ होता है. तो आप उनको सर्विस भी अच्छी दे रहे हो, आप उनको रिप्लेस करके दे रहे हो, न्यू दे रहे हो, रिपेयर करके दे रहे हो. ठीक है. सो उसके लिए आप उनकी क्वेरी को सुनोगे. ठीक है. एंड यू मस्ट बी सेटिंग अप अ कॉल. तो वो कॉल सेटअप करने के लिए आप क्या करोगे कि आपने क्या किया कि आपने टीम को बांट दिया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. तो आपने इसमें 4 क्यूज बना दी कि इंडिया के अगर साउथ पार्ट से कोई भी कंप्लेन आ रही है, तो हमारी जो साउथ की टीम है दैट विल टेक केयर ऑफ. अगर ईस्ट से कोई कंप्लेन आ रही है तो ईस्ट टीम विल टेक केयर ऑफ. अगर नॉर्थ से आ रही है तो नॉर्थ विल टेक केयर ऑफ, एंड वेस्ट से आ रही है तो वेस्ट वेस्ट विल टेक केयर ऑफ. सो अगर कोई केसेस आते हैं वो स्पेसिफिकली किसी रीजन से होते हैं, तो दैट विल बी असाइन टू दैट क्यू. ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ जिसमें क्यूब है वो असाइन हो जाएगा. एंड वो जो टीम होगी वहां से वो केस को रिजॉल्व करना शुरू कर देगी. सपोज आपने कहा रखा है कि मेरी सर्विस बहुत ही अच्छी है, आई विल गेट योर क्वेरीज रिजॉल्व इन विद इन द 3 days. 3 days के अंदर आपको मैं शूज डिलीवर कर दूंगी. ठीक है. बट इन केस कोई कस्टमर आपसे डिससेटिस्फाइड है, उसको 5 days लग गए अभी तक, उसका शूज को वापस नहीं आया, मतलब नया शूज नहीं आया, सो make he will escalate his case that why it is delayed, why it is not being delivered in the within the 3 days, as company says it will be delivered in the 3 days, and why it is taking too much time. So there will be an escalation. You can set up escalation rules also inside the Salesforce. आपने नाम सुना था? Have you ever heard before about the escalation rules? No.
Okay. So assignment rule, what happens? Assignment rule particularly assigns the case, means वो किसी एक क्यू को केस का ओनर बना देती है, एंड एस्केलेशन रूल्स क्या करती है कि केसेस को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाती है अब आपकी क्वेरीज रिजॉल्व नहीं हुई है तो. So these are the basically sales aspect and the service object. अब क्या होता है कि जो भी चीजों में जितनी भी चीजें हो सकती हैं पॉसिबल, केस को क्रिएट करने में जितनी पॉसिबल चीजें हो सकती हैं वो आपको पहले से सेल्स फोर्स ने एक टेम्पलेट बना के दे रखा है इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स, कि किस कंसर्न कॉन्टेक्ट का आपका केस है, किस कंसर्न अकाउंट का आपका केस है, केस का इंक्वायरी क्या है, स्ट्रक्चरल दिक्कत है, जो भी दिक्कत है, केस का रीजन, इक्विपमेंट परफॉर्मेंस ब्रेकडाउन हो गया सपोज, जो भी था आपका, उस कंपनी का नेम और कौन सा प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट की क्या पोटेंशियल लाइबिलिटी है नहीं है, तो वो सब चीजें आपको पहले से इसमें बना दे रखी हैं. इफ यू नीड सेपरेट इन्फॉर्मेशन देन आप इसमें कस्टम फील्ड्स क्रिएट करते हो, है ना, अपने प्रोसेस को आगे बढ़ा लेते हो. Leaving to that part, we are coming to our actual part of the Salesforce, the development part. So अभी आपने इससे पहले कोई भी लैंग्वेज सीखी है? No. Okay. So you have basic programming background कि आपको C++ या जावा, आपने कोई भी लैंग्वेज पढ़ी है आपने? हाँ, बेसिक्स पता है लेकिन like I'm not very good at them. No worries. We will take care of. ठीक है. So बेसिकली Salesforce के पास इसी में यहाँ पे एक डेवलपर कंसोल है, यहाँ पर अगर आपने दिखा था सेटअप के पास, तो यहाँ पर ये एक डेवलपर कंसोल का ऑप्शन है वेयर वी कैन लर्न कोडिंग पार्ट. सो आपने जैसे ही क्लिक किया, तो आप जैसे ही क्लिक करते हो तो ये आपको एक नए टैब में खोल लेता है. ठीक है, आप कोशिश कर सकते हो, आप ये यूआरएल को कॉपी कर लो, ठीक है, इसे क्लोज कर लो और आप इसी ब्राउजर में खोल लो, यू विल हैव नो इश्यूज. ठीक है. तो बेसिकली यहाँ पे जब हम कोई भी अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो उसके लॉग्स इस पैनल में आते हैं. ठीक है, यहाँ पे हमारे टेस्ट आते हैं. टेस्ट का मतलब सेल्स फोर्स में क्या होते हैं, कुछ एनवायरमेंट्स होते हैं. ठीक है, बेसिकली दोस आर कॉल्ड सैंड, मतलब एनवायरमेंट्स का मतलब सैंड बॉक्सेस एंड प्रोडक्शन, दिस टू टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट होते हैं. ठीक है, तो अभी क्या है, सपोज सेल्सफोर्स में जैसे कि कभी अभी आपने जब भी पढ़ा होगा इंजीनियरिंग में, तो यू मस्ट हैव अवेयर विद द टेस्टिंग पार्ट, कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, मतलब अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की फेजेस देखोगे तो बेसिकली देयर आर 4 फेजेस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की. सबसे पहली फेज होती है रिक्वायरमेंट गैदरिंग, देन हमारा इम्प्लीमेंटेशन होता है, देन टेस्टिंग एंड देन डिप्लॉयमेंट. दीज आर द 4 फेजेस. एक मिनट, डेवलपमेंट. बेसिकली 4 फेजेस होती हैं हमारे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की. इनिशिएशन फेज, प्लानिंग फेज, एग्जीक्यूशन एंड क्लोजर. इनिशिएशन फेज में आपकी क्या होती है, जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट गैदरिंग चीजें हैं वो होती हैं. देन प्लानिंग फेज में आपका जो भी स्ट्रक्चर का डिफिनेशन है वो होता है. एग्जीक्यूशन फेज में आपका डेवलपमेंट चीजें होती हैं, एंड क्लोजर के फेज में हम उसको डिलीवर करने के केस में होते हैं. ये अलग अलग देखो, अब मैं ऐसे स्पेसिफिक नहीं बोल सकता, अगर आप देखोगे ना तो आपको अलग अलग वेबसाइट्स पे अलग अलग चीजें आपको देखने को मिलेंगी. ठीक है, इंजीनियरिंग में आपने पढ़ा होगा एचडीएलसी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. Life cycle, yeah. हाँ हाँ, तो बेसिकली उसमें यही होता है कि सबसे पहले प्लानिंग आती है, सॉरी, रिक्वायरमेंट गैदरिंग आती है, कि जो भी क्लाइंट है आपसे रिक्वायरमेंट गैदर करते हो. ठीक है, देन आप उसकी प्लानिंग करते हो कि कैसे उसको डेवलपमेंट करना है, फिर आप उसको इम्प्लीमेंटेशन करते हो. अगर आप देखा जाए, मतलब एक्चुअल में यही होता है, मैं बता रहा हूँ आपको, कि अगर आपका 100% आप लेके चलते हो तो कोडिंग का जो पार्ट आता है, ठीक है, पूरे के पूरे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइकिल में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल में वो सिर्फ 20% का पार्ट होता है. बिकॉज 40% का जो पार्ट होता है वो आपका रिक्वायरमेंट गैदरिंग में जाता है, कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, एक्चुअली हमें ये चीज ग्रैब करनी है. 20% के पार्ट में आप सिर्फ कोडिंग करते हो, दैट इज कॉल्ड इम्प्लीमेंटेशन.
एंड 40% का जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो आपका मेंटेनेंस में आपको जाता है। टेस्टिंग डिप्लॉयमेंट, फिर उन्होंने बोला कि कोई इशू आ गया, बग आ गया, इट विल बी मेंटेनेंस। तो 40% जो सॉफ्टवेयर की जो लाइफ साइकिल होती है ना, वो आपका मेंटेनेंस में ही जाती है। दिस इज द एक्चुअल जो आपका इंडस्ट्री में हो रहा है, और नॉट ओनली फॉर द सेल्स फोर्स, इट इज फॉर द ऑल द टेक्नोलॉजीज, सबके लिए ऐसा हो रहा है। अभी आप जब इंडस्ट्री में आप वर्क करोगे तो डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा कि जितने सारे प्रोजेक्ट्स होंगे, मतलब स्क्रैच से डेवलपमेंट आपको कम ही देखने को मिलेंगे। जो लोग आपके सेल्स फोर्स को यूज कर रहे हैं ऑलरेडी, दिस दे आर टेकिंग मेंटेनेंस, दे आर टेकिंग सपोर्ट। सपोज आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, तो उसके लिए जब आपको प्रोजेक्ट मिलेगा ना, तो उस प्रोजेक्ट को दे विल बी यूजिंग, मतलब वो पहले से सेल्स फोर्स यूज कर रहे होंगे। कि उसके केस में आपको फ्रेश डेवलपमेंट भी मिलेगा। कोई कंपनी है जावा पे वर्क कर रही थी, अब वो सेल्स फोर्स पे आ रही है, या वो कंपनी ओरेकल पे वर्क कर रही है, वो सेल्स फोर्स पे आ रही है, या वो कोई और लाइसेंसेस यूज कर रहे थे सीआरएम पे, बट अब वो सेल्स फोर्स पे आ रहे हैं, तो वो वहां पे आपको इसका डेवलपमेंट सीखने को मिलेगा। बट कई बार ऐसा होगा कि कोई कंपनी है वो पहले से सेल्सफोर्स यूज कर रही है, तो अब क्या है, उसे कुछ इन्हेंसमेंट कराना है, कोई नया कंपोनेंट लगाना है, पेज लगाना है, तो उस केस में ना आपका वो मेंटेनेंस पार्ट ही होता है। वो ज्यादातर आपका वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का पार्ट होता है 40% का। 20% सिर्फ आपका कोडिंग का पार्ट होता है, जो आपका एक बार आपका होता है डेवलपमेंट का। तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज आप मैं बता रहा कि दो आपने चीजें सुनी होंगी, एक एजाइल और एक डेवऑप्स सुना होगा। आर यू अवेयर? Yeah. ओके, agile and DevOps, these are the two development methodologies। ये आपकी डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी है, ठीक है, एजाइल और डेवऑप्स। डेवऑप्स को मैं सिंपल बताता हूँ, डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस। क्या होता है कि अभी जैसे सेल्सफोर्स में हमें तो समझ में नहीं आता, क्योंकि सेल्सफोर्स में हमारे पास मल्टीपल स्किल्स होती हैं, ठीक है। हमें हम जो डेवलपर हैं वो यूआई भी बनाते हैं, वो बैकएंड का कोड भी लिखते हैं, हम ही लोग टेस्ट क्लासेस भी लिखते हैं, हम ही लोग उन्हें डिप्लॉय भी करते हैं, ठीक है। तो इसमें तो नहीं समझ में आता, बट अदर प्रोजेक्ट्स में क्या होता है कि आप देखोगे तो कोडिंग, जो कोडर पार्ट है उसने टेस्टिंग कोडिंग वोडिंग कर दी, ठीक है। उसमें ऑपरेशंस टीम होती है, जो कि सर्वर पे कितना स्केल करना है, कितना स्केल नहीं करना है, कोड को डिप्लॉय करना है, ठीक है। जैसे जैसे हमारे पास टेस्टिंग टीम होती है कोड, मतलब इंडस्ट्रीज में, कि आपने कोड लिख दिया और टेस्टिंग टीम उसको टेस्ट करेगी। इन द सेम वे ऑपरेशंस टीम होती है, जो कि दे टेक केयर ऑफ द सर्वर्स, कि कितना स्केलिंग करनी है, कितना स्केलिंग नहीं करनी है। अच्छा, इतने यूजर होंगे, इतने यूजर नहीं होंगे, यूजर बढ़ रहे हैं, स्केलिंग और बढ़ा दी, कोड को डिप्लॉय करना, वो दैट इज देयर हेडेक। आपने कोड किया, करके दे दिया, टेस्टिंग टीम ने टेस्ट कर दिया, अब उस कोड को लाइव करना वो ऑपरेशन टीम की हेडेक है। सो डेवऑप्स इज अ डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी विच टेक्स कोलैबोरेशन, क्योंकि बहुत ही ना कॉन्फ्लिक्ट होते हैं इंडस्ट्रीज में, कि आपने करके दिया और जब उन्होंने एंड टाइम पे डाला तो कोड फट गया, तो बोलेंगे आपकी गलती है, आपने कोड फॉर्मेट हमें टाइम पे नहीं दिया था। सपोज मान लो कि आपने कोड करके पहले दे दिया, वो उन्होंने ठीक से डिप्लॉय नहीं किया, तो आप उनको डिप्लॉय बोलोगे नहीं आपने कुछ नहीं गलती किया, तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट आते हैं। जब जब डिप्लॉयमेंट का टाइम होता है ना, तो एक्चुअल इंडस्ट्री में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट आते हैं। सेल्स फोर्स में भी ऐसा ही होता है, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, बहुत सारे ब्लेम गेम होते हैं। नहीं नहीं, ये आपकी वजह से हुआ, नहीं नहीं, ये मेरी वजह से हुआ, ये उसकी वजह से हुआ, ब्लेम गेम खेलते हैं। तो इन चीजों को मैनेज करने के लिए दिस अ थिंग कॉल्ड डेवऑप्स, लाइक डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस टीम का एक कोलैबोरेशन वे में काम करना। और एजाइल जो होता है, एजाइल एक डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी जो कि जहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट बहुत ही फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही है जिस कंपनी में, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को एक साथ डिलीवर ना करके छोटी छोटी फंक्शनैलिटीज को वो रिक्वायरमेंट लेते हैं, डेवलप किया, टेस्ट किया और डिप्लॉय मार दिया, ठीक है। तो वहां पे जो टीम होती है, एक टीम के पास सारी के सारी नॉलेज होती है, जैसे कि सेल्स फोर्स में हर डेवलपर के पास एडमिन की नॉलेज भी होती है, और कोडिंग की भी नॉलेज होती है, और थोड़ी बहुत डिप्लॉयमेंट की नॉलेज भी होती है, ही नो अबाउट द चेंज सेट, हाउ टू डिप्लॉय। ये सब नॉलेज, बेसिक नॉलेज होती है। तो वहां पे क्या हुआ कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट मिली, छोटी सी एक फंक्शनलिटी मिली, या फिर मतलब क्लाइंट को एक छोटा सा पेज चाहिए, वीएफ पेज चाहिए, या फिर लाइटनिंग कंपोनेंट चाहिए, आपने बनाया, टेस्टिंग किया, डिप्लॉय कर दिया। तो एजाइल वे में क्या हुआ कि जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स आती जा रही है, तो उनको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करके हम उन्हें डेवलपमेंट को करते हुए देते हुए चले जा रहे हैं। मैं आपको थोड़े से लिंक्स दे दूंगा इन्हें पढ़ने के लिए, थर्ड पार्ट को सबको समझने के लिए। बाकी आपको ओवरव्यू क्लियर है? Oh, Correct? yeah. ठीक है। सो ठीक है, अ, हाँ, हम जहाँ पर थे, तो हमने डिस्कस कर लिया कि बेसिकली प्रोजेक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या हो गई, और एजाइल और डेवऑप्स में डिफरेंस क्या है, ठीक है, ये चीज है। नाउ कमिंग टू द सेल्स फोर्स पार्ट, सेल्स फोर्स में हम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं, डेट इज कॉल्ड एपेक्स। एपेक्स इज सिमिलर टू जावा, ठीक है।
बट एपेक्स जो होती है आपकी वो केस इनसेंसिटिव होती है, ठीक है। एपेक्स दैट इज सिमिलर टू जावा। तो इन सेल्सफोर्स डेवलपमेंट एपेक्स इज द बैकग्राउंड, मतलब बैकएंड लैंग्वेज, ठीक है। ठीक है, जैसे आपने यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द जावा। जावा में आपने कुछ आपने फ्रेमवर्क सुने होंगे, जैसे कि स्प्रिंग, स्ट्रट्स, स्ट्रट्स अभी यूज नहीं होता खैर, स्प्रिंग लो, इसके अलावा आपने हाइबरनेट, ठीक है। कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं जो कि आपके डेवलपमेंट को बूस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इन द सेम वे, सपोज जावा को एग्जांपल छोड़ देता हूँ, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ उसका, जावास्क्रिप्ट का ले लेता हूँ। जावास्क्रिप्ट आपने नाम सुना होगा लैंग्वेज का। तो उसमें जैसे अगर जावास्क्रिप्ट में आपको बैकएंड प्रोग्रामिंग करनी होती है, बैकएंड की कोडिंग करनी होती है, तो एक इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रन टाइम एनवायरनमेंट, Node.js. हैव यू हर्ड अबाउट बिफोर? Node.js, yes. Okay, Node.js is used for the backend development. ठीक है। एंड जावास्क्रिप्ट में कुछ फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स होते हैं। फ्रेमवर्क बोले तो एंगुलर, ठीक है। एंगुलर इज अ फ्रेमवर्क, फ्रंट एंड फ्रेमवर्क, ठीक है। इसके अलावा और भी चीजें होती हैं, मतलब जैसे कि रिएक्ट हो गया, ठीक है, रिएक्ट जेएस, वू जेएस, वी तो बहुत सारे फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज हैं जावास्क्रिप्ट पे, और बैकएंड के लिए नोड जेएस है, ठीक है। इन द सेम वे एपेक्स का आपने नाम सुना है, एपेक्स इज ए बैकएंड। फ्रंट एंड में आप क्या क्या जानते हो सेल्सफोर्स में? Sorry? जैसे अगर इफ यू टॉक अबाउट द सेल्सफोर्स, तो बैकएंड के लिए एपेक्स हो गया, ठीक है। फ्रंट एंड के लिए आप क्या क्या जानते हो कि क्या क्या फ्रेमवर्क है, टेक्नोलॉजीज है सेल्सफोर्स में? Salesforce. में फ्रंट एंड के लिए जैसे आपने एक नाम सुना होगा, वीएफ पेज, विजुअल फोर्स पेजेस। नहीं, मैंने नहीं सुना। अच्छा, नहीं सुना, ठीक है, कोई बात नहीं। इन द सेम वे जैसे कि बैकएंड के लिए हमारा Node.js था और फ्रंट एंड में हम एंगुलर यूज करते थे यूआई बनाने के लिए, ठीक है ना। इन द सेम वे एपेक्स हमारी बैकएंड लैंग्वेज होगी जिसपे हम अपने बिजनेस लॉजिक लिखेंगे, ठीक है। एंड विजुअल फोर्स इज दी फ्रंट एंड, जो हमारी फ्रंट एंड चीजें होंगी, जो कि हमारा कभी अगर हमें पेज बनाना हुआ, सपोज कि हमारी रिक्वायरमेंट है कि एक ऐसा पेज बना दें और यहाँ पे कुछ टाइप करें, तो ये किसी यूआई पार्ट जो बनाते हैं हम लोग, तो एक टेक्नोलॉजी हमारे पास है जो कि वीएफ पेज की है। तो सेल्सफोर्स में तीन चीजें हैं, एक हमारा विजुअल फोर्स पेजेस है, ठीक है। सेकंड हमारा है लाइटनिंग कंपोनेंट्स, ठीक है, लाइटनिंग कंपोनेंट्स, ठीक है, दिस कॉल्ड Light. ऑरा, हाँ, वीएफ पेज फ्रेमवर्क, विजुअल फोर्स फ्रेमवर्क, VIS, विजुअल फोर्स, FRAM फ्रेमवर्क, ठीक है, ये ऑरा फ्रेमवर्क कॉल। एंड थर्ड वन इज LWC, इट इज कॉल्ड लाइटनिंग वेब कंपोनेंट। बेसिकली ये तीन टेक्नोलॉजीज हैं सेल्सफोर्स में, जो कि विजुअल फोर्स पेजेस है, ये बहुत ही पहले यूज होती थी, अभी कुछ कंपनीज में यूज हो रही हैं, मतलब सम ऑफ द कंपनीज यूज, सम ऑफ द कंपनीज डोंट यूज। एंड सेकंड इज लाइटनिंग कंपोनेंट, एंड थर्ड द लेटेस्ट वन इज LWC, लाइटनिंग वेब कंपोनेंट्स। ये बेसिकली तीन चीजें होती हैं सेल्सफोर्स में। एंड एपेक्स इज द मेन पार्ट, जो कि आपकी सारा का सारा बिजनेस लॉजिक आप एपेक्स में ही लिखोगे, राइट। और इसमें से ये दो चीजें हैं जिसपे मैं ये बना रहा हूँ, ये ड्रॉ बना रहा हूँ, इनका डेवलपमेंट, ठीक है, इनका डेवलपमेंट और इनका डेवलपमेंट, इन तीनों का डेवलपमेंट आप यहाँ से कर सकते हो, सेल्सफोर्स के स्टैंडर्ड डेवलपर कंसोल से आप कर सकते हो, ठीक है। बट इसके डेवलपमेंट के लिए आपको अपने सिस्टम में VS कोड इंस्टॉल करना पड़ेगा। विदाउट VS कोड यू कैन नॉट लर्न,
for the LWC part. ठीक. So coming to the Apex part, अब एक बेसिक ओवरव्यू दे दिया. हाँ, सेल्सफोर्स में दो ही चीजें होती हैं, एक आपका एडमिन होता है, एक आपका डेवलपमेंट होता है. एडमिन पार्ट की आपको बेसिक नॉलेज है, ठीक है. एंड हमने ये सीखा कि क्यों हमें सेल्सफोर्स कुछ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट देती है, उनका क्या सिग्निफिकेंस है सेल्स का, सर्विस का. इन द सेम वे मार्केटिंग का भी बहुत ही स्कोप है, और मार्केटिंग के भी एक अलग से इन्होंने ऐप बना के दे रखी है फॉर द लर्निंग पर्पस. मार्केटिंग में जर्नी क्या होती है, जर्नी बिल्डर क्या होते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं. तो वो हमने देखा, ठीक है. वी हैव लर्न दैट कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल में क्या चीजें होती हैं. 40% रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस, 20% कोडिंग एंड 40% हमारा मेंटेनेंस पार्ट होता है. वी हैव लर्न दैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज, एक होती है डेवऑप्स, एक होती है एजाइल. सेल्सफोर्स में आपको मोस्टली एजाइल चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है. और हमने सीखा कि एपेक्स लैंग्वेज जो कि हमारी बैकएंड का पार्ट होगी, फ्रंट एंड में हम विजुअल फोर्स बेस सीखेंगे, ठीक है. देयर आर लाइटिंग कंपोनेंट्स एंड लाइटिंग कंपोनेंट्स, ये तीन ही फ्रेमवर्क्स हैं, ठीक है. इसमें इसमें तो आपने सुना होगा जावास्क्रिप्ट में कि एंगुलर है, रिएक्ट है, वू है, बहुत सारे फ्रेमवर्क होते हैं नोड.जेएस में. इसमें एपेक्स में भी, सॉरी जावा में भी क्या होता है आपका स्प्रिंग, हाइबरनेट, बहुत सारी चीजें होती हैं, मेरे को तभी आइडिया नहीं है अभी, ठीक है. सो अब कमिंग टू द एपेक्स पार्ट. अभी एपेक्स में क्या होता है कि सेल्सफोर्स में मैं की बताने जा रहा था आपको कि ये तो हमारे मतलब टेक्नोलॉजीज हो गई, ठीक है. अब हम कहाँ पे कोडिंग करेंगे, कहाँ पे चीजें करेंगे, तो यहाँ पे कुछ इन्वायरमेंट्स होते हैं. इन्वायरमेंट्स या फिर हम बोलते हैं सैंड बॉक्सेस, ठीक है. एक नेट नोटपैड में लिख लेता हूँ मैं, ठीक है. हमारे यहाँ पे 4 टाइप के सैंड बॉक्सेस होते हैं. वन इज डेवलपर सैंड बॉक्स, डेवलपर प्रो, पार्शियल कॉपी एंड द फुल कॉपी, ठीक है. एंड देयर इज अ प्रोडक्शन एनवायरनमेंट. सो बेसिकली दो एनवायरनमेंट आपके होते हैं, एक आपका होता है सैंड बॉक्सेस, एक आपका होता है प्रोडक्शन. प्रोडक्शन आपका वो एनवायरनमेंट होता है जो आपका लाइफ, जहाँ पे आपके बिजनेस यूजर्स वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है. और सैंड बॉक्सेस जो होते हैं वो आपके नॉर्मल एनवायरनमेंट होते हैं, जहाँ पे हम कोडिंग टेस्टिंग, जहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करते हैं चीजों को. दोज आर कॉल्ड सैंड बॉक्सेस. मीन्स जब आप डेवलपमेंट कर रहे होते हो तो आप सैंड बॉक्सेस को यूज करते हो, ठीक है. फिर सैंड बॉक्सेस से आप अपने पूरे के पूरे कोड को आप प्रोडक्शन पे लेके जाते हो. जैसे आपने कभी कभी भी स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में जावा पढ़ी होगी, ठीक है. तो जावा आप बेसिकली लोकल होस्ट पे चीजों को रन कर लेते थे. लोकल होस्ट पे आपने प्रोग्राम बना लिए, ठीक है ना. और आपने अगर आपने एडवांस जावा पढ़ी होगी, जैसे कि आपका जीएसपी, जावा जावा सर्वर पेजेस, या फिर आपने सर्वलेट पढ़े होंगे कॉलेज में, स्कूल में, ठीक है. तो सर्वलेट्स के लिए आप फिर उसमें आप अपने सिस्टम में सर्वर टॉमकैट अपाचे इंस्टॉल करते थे. सर्वर सर्वर आप बनाते थे ग्लासफिश से, फिर जो भी सर्वर यूज करते हो, तो वो चीजें आप अपने सिस्टम पर लोकल कर रहे थे, बट वो चीजें लाइव नहीं थी, ठीक है ना. इन द सेम वे जब हम डेवलपमेंट करते हैं तो डेवलपमेंट हम अदर एनवायरनमेंट में करते हैं. जैसे कि ये ऑर्ग आप देख रहे हो, ठीक है ना. तो ऐसे मल्टीपल ऑर्ग बनती हैं जब जब आपका इंडस्ट्री में काम करते हो. तो जैसे ये आप ऑर्ग देख रहे हो, तो ऐसे मल्टीपल ऑर्ग बनती हैं, ठीक है. उसमें से एक ऑर्ग आपकी होती है लाइव ऑर्ग, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन ऑर्ग, ठीक है, जिसमें आपकी चीजें एक्चुअली चीजें चल रही होती हैं. और कुछ आपके एनवायरमेंट होती है लाइव, कुछ ऑर्ग होती हैं जिन्हें बोलते हैं सैंड बॉक्सेस. सैंड बॉक्सेस में आप डेवलपमेंट करते हो. और सैंड बॉक्सेस के भी कुछ टाइप्स होते हैं. ये बेसिकली 4 टाइप्स ही होते हैं. इट इज अ इंटरव्यू क्वेश्चन. आप इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एंड आई विल गिव, मैं आपको एक डॉक्यूमेंट भी दूंगा इसका, ठीक है. सैंड बॉक्सेस, ये आपका इंटरव्यू क्वेश्चन है. वो पूछते हैं कि इंटरव्यू में कि व्हाट आर द सैंड बॉक्सेस एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स. सैंड बॉक्सेस हमारे 4 तरह के ही होते हैं: डेवलपर, डेवलपर प्रो, पार्शियल कॉपी एंड फुल कॉपी. इन डिटेल वी विल डिस्कस, हम डिस्कस करेंगे डिटेल में. फुल कॉपी एक्चुअल जो होती है वो इसका रेप्लिका होती है, प्रोडक्शन की रेप्लिका होती है. सैंड बॉक्सेस में हम अपना कोडिंग टेस्टिंग करते हैं एंड देन हम इसे करके यहाँ भेजते हैं. सेल्स फोर्स में एक चीज जो है वो मैंडेटरी होती है. आपने कोई भी क्लास लिखी है, ठीक है. जैसे आपने जावा में सी सी पर आपने क्लासेस लिखी होंगी, तो आपने कोई भी क्लास लिखी है, एपेक्स क्लास बनाई है, तो उस एपेक्स क्लास को प्रोडक्शन में भेजने के लिए एज अ डेवलपर आपको यूनिट टेस्टिंग करना मैंडेटरी है. यूनिट टेस्टिंग के लिए
ये जो टेस्ट पार्ट में दिखा था ना डेवलपर कंसोल में, ये भी हमारा यूनिट टेस्टिंग में यूज होता है, मतलब टेस्टिंग में भी यूज होता है। तो अगर कोई क्लास या फिर आपका कोड अगर आप प्रोडक्शन में भेज रहे हो तो वो आपका यूनिट टेस्टेड होना चाहिए, दैट इज मैंडेटरी। ठीक है, और उसका 75% कवरेज होना एक मैंडेटरी है। अदर टेक्नोलॉजीज में ऐसा नहीं होता, बट सेल्सफोर्स में ऐसा होता है कि आपने जो भी कोड लिखा है एटलीस्ट उसकी यूनिट टेस्टिंग होनी ही चाहिए। विदाउट यूनिट टेस्टिंग के आप उसको प्रोडक्शन में नहीं भेज सकते। तो वी विल डिस्कस इन डिटेल, वो हम डिस्कस में और डिटेल करेंगे कि सैंडबॉक्सेस के क्या पार्ट हैं, क्या चीजें होती हैं। वी विल डिस्कस की फाइल डिबग का क्या क्या यूज है, why we use query editors, where are the view states, what are the progression problems, we will discuss in the developer console हम इसलिए यूज करते हैं डेवलपमेंट पर्पस से। हम we will discuss here कि एपीएस क्लास कैसे बननी है, ट्रिगर्स क्या होते हैं, विजुअल फोर्सेस क्या होते हैं, स्टैटिक रिसोर्सेस क्या होते हैं, लाइटिंग एप्लीकेशन क्या है, कंपोनेंट क्या, इंटरफेस क्या है, we will discuss all the things. So far now अभी आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लो। No, Amit. अभी तक कुछ क्लियर हुआ कि why we use these things? Hmm? अभी तक मतलब सेल्स फोर्स में जो एप्स हैं ये क्यों दी होती हैं, कुछ क्लियर है? हाँ, ये डिफॉल्ट एप्स कुछ दी होती हैं, ठीक है। और डेवलपर कंसोल पे हम डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है। वी विल लर्न दी एपेक्स क्लासेस कैसे बननी है कैसे नहीं बननी है। hmm. तो बेसिक जो भी प्रिंसिपल्स हमने पढ़े होंगे जावा में कि कंस्ट्रक्टर, इंटरफेस, इनहेरिटेंस, वी विल डिस्कस ऑल द थिंग्स। हम पहले बेसिक प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, देन वी विल गो फॉर द जंप फॉर द विजुअल फोर पेजेस, देन विल डू इंटीग्रेशन एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। सो Okay. ठीक है, फॉर दिस सेशन मैं बस उसे ब्रीफ ही रख रहा हूँ, आई विल नॉट गोइंग टू इन डेप्थ। और कुछ भी जो चीजें हैं वो मैं थोड़ा पढ़ने के लिए, जो भी चीजें हैं वो एंड जो टेल हेड्स हैं जो भी, वो आई टेल यू कि कहाँ पे आप कौन सा टेल हेड आप प्रेफर कर लो और कौन सी चीज कर लो। सम ऑफ डॉक्यूमेंट्स आई विल गिव यू टू गो थ्रू, एंड along with I will also tell you what are the type of interview type questions. Okay. So far now आज के लिए इतना ब्रीफ रखते हैं। अभी आपको कोई और भी डाउट हो जो आपको लगता हो कि you want to ask from me, you can ask. No, nothing for now. Nothing for now. Okay, इसे ऐसे एक चीज मैं बताते जाता हूँ कि आपने यूजर देखा होगा इसमें सेल्स फोर्स में, ठीक है। सपोज दिस इज अ यूजर, Hmm? यूजर आपने देखा होगा। तो Hmm? यूजर में दो चीजें होती हैं, हाँ ये रहा, you are getting an option here that is called freeze, Hmm? okay, and we have also option here that is called inactive. We can inactive a user and we can freeze a user. In both the cases user will not be allowed to log in. अगर मैं यूजर को फ्रीज कर देता हूँ या फिर मैं इनएक्टिव कर देता हूँ, इन बोथ द सिनेरियोस यूजर विल नॉट बी अलाउड टू लॉग इन। अगर आपको टाइम मिले तो आप चेक करना कि क्या डिफरेंस है बिटवीन फ्रीज एंड इनएक्टिव, मतलब इन फ्रीजिंग अ यूजर एंड डीएक्टिवेटिंग अ यूजर। अदरवाइज आई विल टेल यू ओके व्हाट इज द डिफरेंस। Okay. Yeah. ओके मधु, सो फॉर नाउ वी मेंटेन करते हैं, वी कनेक्ट टुमारो। Okay. Thank you. ओके, थैंक यू मधु। हाय सतीश, हेलो।